زیادہ کر دی ہوتی ہے فائدہ اتنا اللہ کے بندو تقریباً 200 دیگ لنگر کی بنی ہے، 200 دیگیں لگ بھگ لنگر میں بنی تقریباً، جہاں تک میں جانتا ہوں، اور آپ کھا پی کے الحمدللہ بیٹھے تو کم سے کم بندہ لنگر کا تو آپ ہی کر لیا کرے جب بات بولنے کی ہے، اور اگر لنگر ہاتھ نہیں آیا ہے تو کم سے کم گھر سے کھا کے آیا کرے تاکہ سبحان اللہ کہنے کا پیٹ میں سہارا رہا۔ کھا پی کے آئے ہیں نا، اور کچھ یہاں کا بھی کھا کے بیٹھے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یہاں کھائیں یا وہاں کھائیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ اگر اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اگر یہ پیچھے والے بول سکتے ہیں تو بول کے دکھا دیں۔ اللہ سلامت کے اور زور سے، ابھی وہ آواز نہیں نکلی اس آنگن میں بیٹھ کے تو یار مردے بولنے لگ جاتے۔ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ابھی کون سی کمی رہ گئی اس مجمع میں جو ابھی بولنے تیار ہی نہیں؟ کھاتے ہیں تیرے در کا۔ اللہ سلامت رکھے حضرت جی، یہ آج لگ رہا ہے کہ صرف منبر والے نعت نہیں پڑھتے، یہ نیچے والے بھی نعت پڑھتے۔ بھائی مبارک حسین مبارک دلکش راجکی صاحب، یہ بڑے بڑے قداور نعت خواں، یہ سب کے سب مصطفیٰ کے سناخواں ہیں، مگر میں یہ کہہ دوں جو یہ نیچے بیٹھے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کے سناخواں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ بس امت مسلمہ سے صرف ایک خیال اور چند باتیں بہت توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ اس وقت امت مسلمہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہماری قوم کے اندر ہیں جس نے ہماری قوم کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ صرف میں ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایسے دور میں جب امت کا شیرازہ بکھرنے لگا، لوگ ٹوٹتے جا رہے ہیں اور ہر شخص کی یہ تلاش ہے کوئی مجھے مضبوط شاخ ملے جس کے سہارے میں بھی 12 برس کھڑا ہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی آندھیوں کے دور میں ایسی سپورٹ ہمیں مل جائے جس کے سہارے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ہر انسان امن چاہتا ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، لیکن جانتے ہو آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہماری قوم صرف اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ ہوتی ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہماری قوم تباہ ہوتی ہے۔ آج ہماری قوم کی نفرت عروج پر ہے، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، اللہ اکبر۔ جب میں نے سڑک پہ دیکھا میں نے کہا یار یہ سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد جب گیٹ میں داخل ہوا پتہ چلا سڑک پہ زیادہ نہیں، گیٹ کے بعد زیادہ لوگ ہیں۔ لیکن میں نے کہا یار یہاں اتنے لوگ تو پھر جلسے میں کون ہوگا؟ لیکن جب گیٹ کے اندر داخل ہوا تو پتہ چلا جتنے لوگ روڈ اور مارکیٹ میں تھے اس سے زیادہ لوگ تو حضور کے جلسے میں بیٹھے ہوئے، اس سے زیادہ تعداد یہ لوگوں کی۔ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہمارے اتنے بڑے مجمع میں کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جسے کسی سے ناراضگی جس کے دل میں نہ ہو، کسی کی نفرت جس کے دل میں نہ ہو؟ آج ہزاروں کی بھیڑ میں بیٹھ کر کے نعرے بیٹھے تو لگا لیتے ہیں لیکن آپس کی نفرتیں نہیں مٹا پا رہے، آپس کے اختلافات نہیں مٹا پا رہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جگہیں ختم ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ مجھے بتائیے یہ وہ نورانی جماعت ہے اگر ہاتھ اٹھاتے تو بیڑے پار ہو جائے، مگر میں ان علماء کرام کی جوتیوں کو سر کا تاج بنا کے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے وضو بھی کرے غسل بھی کرے اور سجدے میں سر رکھے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس نے غسل کیا میں نے اس کا بدن پاک کیا، اس نے وضو کیا ہاتھ پیر پاک کیے، لیکن یہ دل کے اندر اپنے بھائی کا کینہ لے کر کے سجدہ کر رہا ہے۔ جاؤ اس سے کہہ دو جب تک اس کے دل کے اندر
इसके भाई का बुग़्ज़ और कीना मौजूद है, मुझे इसके सजदे कबूल नहीं है। अगर चाहता कि सजदों की कबूलियत हो, इससे कहो जैसे बदन पाक करके आया है वैसे ही दिल पाक करके आना चाहिए। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मस्जिद में कीने की इजाजत नहीं तो जलसों में बुग़्ज़ लेकर के आओगे तो नतीजा क्या मिलेगा? आपस की नफरतें खत्म करो। कब तक ये हमारे दरमियान आपस में इख्तलाफात की दीवारें खड़ी रहेगी? भाई भाई का चेहरा देखने तैयार नहीं, बाप बेटे का चेहरा देखने तैयार नहीं, बेटा बाप से मुसाफा करने तैयार नहीं। यार बदलो सोच अपनी। कब तक इस फिक्र में हम जीते रहेंगे? वो उम्मत बन जाओ जो मुस्तफा ने हमें सबक दिया था, वो जमात बन जाओ जो मुस्तफा बना के गए थे। कौन सी जमात मुस्तफा ने बनाई थी? अल्लाह अकबर। आज भी आवाज आती है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। आखिर ये कौन सी नफरतें हैं जिसने भाई भाई से जुदा कर दिया, जिसने बाप को बेटे से जुदा कर दिया? माजरत के साथ कहना चाहूंगा, दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले अगर दीन का सबसे ज्यादा काम हुआ है तो खानकाहों से हुआ है। लेकिन आज अगर उम्मत को नुकसान भी पहुंच रहा है तो सबसे ज्यादा कुछ खानकाहों से नुकसान पहुंच रहा है। पीरों ने भाई को भाई से लड़ाया, पीरों ने भाई के भाई को दुश्मन बना दिया। और खुदा की कसम, हम उस पीर को पीर नहीं मानते जो आला हजरत को आला हजरत नहीं माना। अगर मेरा मुरीद हो गया तो किसी की जरूरत क्या है? मेरे हाथ में हाथ आ गया तो किसी की जरूरत क्या है? वो हया कर, उम्मत के साथ खिलवाड़ न कर। तूने भाई को भाई से इसलिए लड़ाया ताकि तेरी जेब में गर्मी रह सके। तूने भाई को भाई के खिलाफ सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि तेरी तिजोरियां भरी रहे। और उसके बाद भी कम से कम ये देखो, बहुत आला हजरत को खुदा की कसम, अगर बरेली में अहमद रजा न होते तो मर्सिडीज तो क्या है, कोई तुझे ऑटो में बैठाने के लिए तैयार न होता, कोई रक्शे में बैठाने के लिए तैयार न होता। आज हम ये बड़ा घूम रहा है, ये तेरा कमाल नहीं, ये कमाल बरेली के अहमद रजा खान का है। आपने दूसरी बेगैरत को इस्लाम की, भाई को भाई से लड़ा दिया। खुदा के वास्ते इस उम्मत को मत लड़ाओ। बरेली नीयत क्या है और मसलक के आला हजरत क्या है? अल्लाह की कसम हमें बरेली ये सबक देता है, जो सुन्नी सही अकीदा हो और उसका सिलसिला मुस्तफा से लिखता हो, किसी भी सिलसिले का हो, हमारे लिए लायक एहतराम। ये बरेलियत है। लेकिन आज पीरों ने अपनी जेब भरने के लिए उम्मत को लड़ा दिया। कहां जाके खड़ा करोगे इस उम्मत को? हाँ, कई लोग तो इसलिए नाराज रहते हैं कि ये मोल की तारीफ नहीं करता। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, लोगों अगर मुरीद होना है तो उसके मुरीद हो जो 12 घंटे मुस्तफा की हदीसें पढ़ाया करता। अगर हाथ में हाथ देना है तो उसके दो जो सुबह 4 बजे से उठ करके रात को 12 बजे तक मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया करता। ये हमारी उम्मत जो बड़े जो ये हमारी कौम की ये बदतर हालत नहीं, माजरत के साथ बड़ा कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, बहुत कड़वी सच्चाई है। पूरी जिंदगी बाप की रंगीनी करता रहा और बेटे को कभी मदरसा नहीं दिखाया, कभी मदरसा नहीं दिखाया। और हमारी कौम ने यह समझ लिया है कि पीर का बेटा ही पीर होगा। सबसे ज्यादा तबादी से पीर का बेटा पीर होगा नहीं, पीर वो होगा जिसमें पीर की शराइ पाई जाए। मतलब पूरी जिंदगी बेटा जुआ खेलता रहा, पीर साहब के साथ होता है, कहां मेरा बेटा? हजरत जी क्यों? कहां मेरा वक्त आ गया है जाने को बुलाओ है। 26 साल तक जुआ खेलता रहा, अपने हाथ में हाथ किया, अरे बेटे ये मौज की चक्की तुझे देके जा रहा हो, जिसकी चेहरे पे दाढ़ी न थी, जिसको काला रसूलुल्लाह का मतलब मालूम न था, जिसको कुरान के माना नहीं आते थे, आज वो गद्दी पे बैठा है और ये कौम जाके तल में चाट लगी है उनके। ऐसे जाकिरों का बाइकाट करो और ऐलान करो, पीर वही होगा जो मुस्तफा के दीन का भी वारिस होगा, इल्म का भी वारिस होगा।
मुफ्ती आजम को क्या कहेगा? पीर अगर तेरे जैसे होते हैं तो आला हजरत को क्या कहेगा? हाँ, खुदा की कसम अल्लाह माफ करे, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो पीर और थे जिनकी नजर दिल पे होती है, ये पीर वो है जिनकी नजर जेबों पे होती है। कौन नहीं जानता सरकार मुफ्ती आजम को? अल्लाह अकबर। जिसका साया पड़ गया तो शेर बिहार को दिलों की धड़कन बना डाला। और सुने, शेर बिहार में किसी आम मैखाने से नहीं पी थी, शेर बिहार में उस मैखाने से पी थी जिस मैखाने में तादाद से लाके जमा की जाती। कौन है मुफ्ती आजम? अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम अपने मकान में बैठे, रात के 3 या 4 बजे एक शख्स गुजर के जा रहा था, रोशनदान से सफेद रोशनी निकल रही। उसने झांक के देखा कि हजरत के इस कमरे में तो सफेद लाइट किस चीज की है, है ही नहीं चीज। ये सोच के उसने झांक के देखा तो क्या देखता है, कोई बुजुर्ग हैं जो तख्त में बैठे हैं, मुफ्ती आजम है जमीन पे बैठे हैं। देख के चला गया, फजर की नमाज पढ़ी, आगे हजरत की चिलम पढ़ने लगा, कहने लगा हुजूर रात से पर्दा हटाइए और मुझे बताइए वो कौन बाबा थे जो ऊपर बैठे थे, आप नीचे बैठे थे। मुफ्ती आजम फरमाने लगे जा अपना काम कर। तो कुछ मुरीद बड़े मुंह चढ़े होते हैं, मुंह लगे क्या लगा नहीं जी पहले बताइए बाद में जाऊंगा। अगर जी चिलम बाद में भूल जाएगी, पहले बताएं कौन थे। अब मुफ्ती आजम का जवाब सुनो, फरमाती सुन, अगर पूछ नहीं है तो सुन, जो तख्त पे बैठे थे वो गौसे आजम थे और जो नीचे बैठे थे वो मुफ्ती आजम थे। काबरत रोशनी कैसी थी? फरमाने लगे जो झरोकों से निकल रही थी ना छन छन के, वो मेरे गौसे आजम के चेहरे की चमक निकल रही। हाँ, मगर एक बात बता दूं, ऐसे पीर जो कौम को लूट के खा रहे हैं, जो पितरम सुल्तान दूध के नारे लगा रहे हैं, वो सुने किसी ने मुफ्ती आजम से कहा था कि आप ही आला हजरत के बेटे हैं। रोने लगे मुफ्ती आजम। उसने इतना देखा ना तो वो भी रो गया, हुजूर मैंने तकलीफ तो नहीं थी। रोए क्यों? फरमाने लगे अफसोस जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मुस्तफा रज़ा ना बन सका। अफसोस कैसे थे आला हजरत? मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था अफसोस वैसा ना हो सका। कैसे है मुफ्ती आजम? यही बरेली शरीफ है, इसी बरेली शरीफ का पुराना शहर है, इसी शहर के अंदर एक छोटी बच्ची है जिसको मोहब्बत है सरदार मुफ्ती आजम से। अल्लाह अकबर, जब कोई रब का महबूब हो जाता है तो वो जग का भी महबूब हो जाता है, सबका महबूब हो जाता है। यही सरदार मुफ्ती आजम है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्यारे, सरदार मुफ्ती आजम की आप जिंदगी देखिए। सरदार मुफ्ती आजम को बच्ची को मुफ्ती आजम से प्यार हो गया। उसने कहा अपने बाप से अब्बा जी मेरा जी चाहता कि मैं मुन्ने मियां को देख के आऊं। अल्लाह अकबर, बच्ची ने इतना कहा, बाप ने कहा ठीक है बेटी लेके चलेंगे। कुछ दिन के बाद बच्ची की तबीयत खराब हुई, बाप से फिर बच्ची कहने लगी अब्बा मैं बीमार हो चुकी हूँ, मुझे एक बार मुफ्ती आजम का चेहरा दिखा दीजिए। बाप ने सोचा बेटी जब तू ठीक हो जाएगी तब लेकर के जाऊंगा। इत्तेफाक ये था कि उसी मर्ज में बच्ची का इंतकाल हो जाता है। जब बच्ची का इंतकाल हुआ बाप की चीख निकली, बेटी के जनाजे पर बैठ करके बाप रोने लगा। पीछे से बाप का भाई आया, उसने कहा क्या बात है? अफसोस इस बात का है कि बेटी को जीते जी मुफ्ती आजम की चौखट पे न ले जा सका। इसने अपनी जिंदगी में कई बार मुझसे कहा था कि मुझे नन्हे मियां का चेहरा देखना है। अल्लाह अकबर, इतना सुना तो चचा ने कहा भाई परेशान क्यों होता है, जिंदगी में ना सकी मरने के बाद ही उनकी चौखट पे ले चलो। अगर ये ना देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम तो इसका चेहरा देख लेंगे, वो तो चेहरा देख लेंगे। इतनी बात चचा ने कही है। बाप ने बेटी की लाश को उठाया, आसान नहीं होता कि लाश बेटी की उठाना, लेकर के सौदा के रात में आए। मुफ्ती आजम इन मुसल्ले पर बैठे हैं, उस तख्त में बेटी की लाश रखी गई जिसमें मुफ्ती आजम बैठा करते थे। सरदार मुफ्ती आजम ने फारिग हुए वजीफे से मुड़ के पीछे की तरफ देखा, फरमाने लगे क्या बात है? इतना कहना तो बाप रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर बेटी आपको याद करते करते चली गई है, उसकी तमन्ना थी वो आपको देखे। कहा कहाँ है बेटी? कहा हुजूर आपके तख्त पे लेटी हुई है। अब देख कैसा है आला हजरत का बेटा, कैसे है मुफ्ती आजम। आप उठे हैं अपने मुसल्ले से, आने के बाद उस जगह आए हैं जहाँ पे बच्ची लेटी हुई थी। आपने बच्ची के ऊपर से वो कपड़ा
افسوس میں ایسا نہ بن سکا، اور جسے نماز درست نہیں ہے وہ قوم کی جنت کے ٹھیکے لیے بیٹھا۔ جلسے کئی سے کئی دعا کیا ہوا، کہنے کی عادت بگڑ گئی، 2 سال میں دعائیں بند ہو گئی تو کرانی بھول گئے۔ یہ حال ہماری قوم کا ہے۔ وہ یاد دیکھ بھال کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، دیکھ بھال کے اگر قربانی کا جانور چاروں طرف سے دیکھتے ہو تو پھر یہ تو آپ اپنی آخرت کا سودا کریں گے۔ سوچ سمجھ کے ہاتھ دیا کرو۔ اللہ اکبر، کہاں کھولے گے یسوع یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں سے چلی تھی بات کدھر ہو گئی۔ خدا کے واسطے امت کا شرازہ بھی کرنے لگا۔ دلوں میں جگہ پیدا کرو، دلوں میں جگہ۔ آج دلوں میں جگہ نہیں ہے، دلوں میں جگہ نہیں ہے۔ آج نیتیں بدل گئی، کوئی پیسہ دیکھ رہا ہے، کوئی بینک بیلنس دیکھ رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر، سسرال والوں نے بہو کو گھر سے نکال دیا، سگے بھائیوں نے گھر میں جگہ دی، سگے بھائیوں نے۔ اللہ اکبر، محرم شریف کا مہینہ گزرا، ایک گھر میں 15 دن لنگر چلا۔ مجھ سے کہہ رہا حضور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں نے کہا کیا ہوگا بھائی؟ اس نے کہا حضور یہ کربلا والوں کا فیضان ہے، 15 دن سے چولہے کی راکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ جس ٹوٹ کے گیا پڑوسی آ گیا، کہنے لگا جناب یہ کہہ رہا ہے 15 دن سے چولہے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس سے پوچھو اس کا باپ کدھر ہے۔ سنیں میری بات، میں نے کہا اس کا باپ کہاں؟ بلایا گیا باپ کو، میں نے کہا بتاؤ خیریت ہے؟ بیٹے سے راضی ہو؟ تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس نے 15 دن سے لنگر چلا رکھا ہے۔ باپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا 15 دن کا لنگر اپنی جگہ ہے، اگر یہ 15 دن سے لنگر کھلا رہا ہے تو مجھے کیا خوشی؟ میں نے کہا روٹی نہیں دی؟ کہتا مجھے تو روٹی دی، تو پھر تکلیف کس بات کی؟ باپ نے کہا 4 سال ہو گئے میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قوم سے، تم سے کس نے کہہ دیا اگر اپنے ناراض ہو تو تمہارے لنگر تمہیں جنت دلائے؟ اپنوں کا خون پی کے بیٹھے ہو، کون سا پیر تجھے جنت میں لے کے جائے گا؟ کائنات میں سب سے بڑے پیر کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا، وہ میرا نہیں، جس سے اپنے ناراض ہو۔ آج جھانک کے دیکھو گریبان میں کتنے ہم سے روٹھے بیٹھے ہیں، کتنے ہم سے ہمارے ناراض ہیں، اس کے بعد نعرے لگاتے گھوم رہے ہیں اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کم سے کم خدا کے بندے پہلے مصطفیٰ کا دامن تھام لے، جو کردار مصطفیٰ نے دیا ہے اسے کب اپنائے گا۔ آج دیواریں گھروں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی ہیں، بھائی بہن کو دیکھنے تیار نہیں ہے، ماں بیٹی کو دیکھنے تیار نہیں ہے۔ ختم کرو یہ نفرتوں کی دیواریں، محبتوں کے پودے لگا دو۔ ہر طرف ایسا ماحول بن جانا چاہیے کہ جدھر سے کوئی گزرے کوئی ذات کی پہچان نہ کر سکے، خاندان کی پہچان نہ کر سکے، برادری کی پہچان نہ کر سکے۔ اگر ایک جگہ بیٹھ کے کھاتے ہو، اگر پوچھا جائے کہ بندہ یہ کس خاندان کے ہے، ہر کوئی یہ کہہ دے خاندان کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتنا پتا ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں مدینے والے کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے۔ ایسی محبتیں پیدا کرو سب نہیں رہے۔ دولت نے دیواریں کھڑی کر دی، نفرت دولت نے اتنی نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئی، دولت نے دیواریں کھڑی کر دی۔ امیر غریب کو دیکھنے تیار نہیں، سگا بھائی بھی ہے نا، سگا بھائی بھی ہے تو سلام کرنے تیار ہے، سگے بھائی بھی، اللہ معاف کرے، اتنی نفرتیں ہمارے دل میں ہو گئی۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے نا، ایک بھائی ماسٹر ہے اور دوسرا ٹھیلے لگا کے بچے پال رہا ہے، کوئی جتنے پانی میں روز ٹھیلا لے کے جاتا ہے اور اسے 90,000 سیل بھی مل رہی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا بھتیجے کس حال میں ہے، بھائی کتنے پانی میں بھیگتا ہوا گیا ہے، یہ موج کے ساتھ بستر پہ لیتا رہتا ہے۔ خدا کے واسطے ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا کرو، دولت کی وجہ سے نفرتیں پیدا نہ کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ امیر ہے یہ غریب ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کرانی ہے، پیسے والا ہے، کتنی قرآن خوانی کہ حضرت 300 بچوں کی دعوت بھی ہے، قرآن خوانی بھی ہے۔ یہ سوچتے ہیں ہم کہ صرف قرآن خوانی سے کام ہو جائے گا، بے شک قرآن پڑھنا ثواب کا سبب ہوتا ہے، لیکن اگر چاہتے ہو باپ کی روح کو قبر میں سکون ملے تو جہاں تم قرآن خوانی کراتے ہو نا، کبھی امیر بھائی اپنے آگے کے دسترخوان کی روٹی اٹھائے
और गरीब भाई के आगे ले जाके बैठ जाए, उसके लुक़मे अपने मुंह में दे, अपनी रोटी के लुक़मे उसके मुंह में दे। खुदा की कसम, जैसी रोटी हलक के नीचे जाएगी, इधर भाई का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। ये जगह पैदा करो दिलों में। नफरतें बढ़ती जा रही हमारे बीच, पैसा वाला पैसे वाला है, गरीब गरीब है। नहीं, हमें मुस्तफा की गुलामी की रस्सी में जकड़ना है, हुजूर की गुलामी इख्तियार करनी है। आज अल्लाह माफ करे, जब अमीर भाई होता है, गरीब बहन होती है, लोग कहते हैं भाई भाग के सब बहन को, बड़ी गरीब है। हालात देखते आप, उधर बहन की बेटियां जवान है, इधर भाई के बेटे जवान है। बहन बार बार आके कहती भैया बेटियां जवान हो गई हैं, थोड़ा सा जरा रिश्ते का ख्याल करना। तो ये कहता हाँ हाँ ढूंढ रहा। और सालिम ये कहने नहीं आई किसी और घर में ढूंढ, ये तो ये ध्यान दिलाने आई कि तू भी बेटी के रिश्ते तलाश कर रहा है, मैं भी बेटी का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। हो सके तो गरीब बहन को निभा ले, हो सके तो गरीब भांजियों को निभा ले। लोग कहते तेरी बहन गरीब है, कहता कोई बात नहीं, लाख तो लाख देके मदद कर दूंगा, बहन को तेरी भीख की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे साहिब शरबत बनाया है, अगर बेड खरीद सकता है, बर्तन अपने पैसों से खरीद सकता है, अगर रहने की छत तेरे पास है, तो अपने बेटे को लेके जा, चार शरीफ लोग लेके जा, बहन के दरवाजे चला जा, खाली हाथ जा और जाकर के बहन से कह दे, ए मेरी बहन अपनी बेटी को मेरे घर की इज्जत बना दे, मैं बेटा लेके आया हूँ, खाली हाथ अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा जब तू गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना के लेके आएगा। तेरी गरीब भांजी तेरे घर की इज्जत बन के लेगी, रात को ठंडी सांस लेगी, अल्लाह अकबर, इधर बेटी मुस्कुराएगी, उधर साथ में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। आज ढूंढ रहे हो जन्नत चाहते, लेकिन नफरतें बढ़ती जा रही, हराम निकलते जा रहे, को निभाने तैयार नहीं, अमीर गरीब को निभाने तैयार नहीं। बदले अपने तरीके, मोहब्बतें पैदा करें सब में मोहब्बतें पैदा करें, भाई भाई का रही, बहन बहन का रही, और खुदा के बंदो रिश्तों की कदर कर लो, कदर कर लो रिश्तों की। ये चले गए तो मयसर नहीं होंगे, यहाँ तक कि दिल भी खरीद लोगे, गुर्दे भी खरीद लोगे, लेकिन मार्केट में कभी भाई नहीं बिका करते, मार्केट में बहनें नहीं बिका करती, मार्केट में माएँ नहीं मिला करती, मार्केट में बाप नहीं मिला करता। आज जिंदगी है, अपने हैं तो इनकी इज्जत कर लो, कल कसम खुदा की तेरी चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सके भाई के सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आए। इज्जत कर लो अपनों की, और बहनों को धक्के दे के ना निकाला करो। दिल रो दिया उसने न्यूज देखी, ससुराल वालों ने तो सितम किया ही किया, और भाइयों ने भी कम से कम किया। गोद में 4 महीने की बच्ची लेके बहन घूमती रही, न भाइयों ने रोटी दी न घर वालों ने रोटी दी। और खुदा के बंदो, ये समाज कितना जालिम हो चुका है, कितना सफाक हो चुका है हमारा समाज। लोग कहते हैं बारिश होती है तो इतनी के सैलाब आ जाते हैं, और नदी होती है तो परिंदे मरने लगते हैं। अपने भी तो कदम देखो किधर है, क्या कर रहे हैं हम। हमारे दिल में अपनों के लिए कितनी नफरतें पैदा हो गई हैं, कभी गौर करें। अल्लाह अकबर, सगे भाई के बहन के दरवाजे पे अगर भाई पहली बात ताकत करने बहन आती है ना, अमीर भाई की, कहती भाई तुझे रब ने मास्टर बनाया है, मैं गरीब हूँ, तू कलेक्टर है, एक दिन बहन के घर में रोटी खाने आ जा, तेरे कदम से बहन की इज्जत बढ़ जाएगी। ये सोच के बहन आई थी। अल्लाह अकबर, समझ रहे मेरी बात समझ में आ रही है ना। बहन कहती है भैया अगर हो सके तो एक दिन मेरे घर पर रोटी खा ले, अगर तू आ गया तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। पहली बात तो जालिम भाई जाने तैयार लगी, अगर चला जाता है, अब देखो कितनी उसके गुर्बत का तमाशा बनाता है कि एक भाई। दिल थाम के मेरी बात सुनना नौजवानों, जब भाई बहन के दरवाजे जाता है तो जाने के बाद सबसे पहले बिस्तर को झाड़ रहा है, ये औकात दिखाता है, कहता तेरी चादर इस लायक नहीं जिस पर मैं बैठ सकूं। जब बैठ जाए, अगर खाने के लिए बर्तन रखे जाए तो ये उसकी प्लेट उठा के चेक करता है। अभी मैंने धुल के लाई है प्लेट को, लेकिन फिर भी घुमा घुमा के देखता है, कहता एक बार और पानी निकाल के ले आओ। ये दिखाता है तू गरीब है मैं अमीर हूँ, और हया कर शर्म आनी चाहिए। तुझे नहीं पता बहन कौन होती है, अल्लाह अकबर, बहनें वो होती है अगर जान की जरूरत पड़े तो दुनिया साथ छोड़ती है, जब सब साथ छोड़ के पीछे हट जाते हैं तो जान तेरे
दुनिया उसी को बहन कहा करती है। दुनिया ने करबला की कहानी सुनी, सबने तारीख करबला सुनी, लेकिन जानते हो करबला में कभी भाई बहन का प्यार देखा? देखा भाई बहन का प्यार? कई लाशें इमाम ने उठाई, आखिर में मेरे इमाम खेमे में थे। सैयदा ज़ैनब के ज़हन में ये ख्याल आया, भाई अकेले हैं, कई लाशें उठा के चूर हो चुके हैं, अकेले रहने से और घुटन होगी, चल के कुछ भाई से बातें करूं ताकि मेरे भाई का सहन बटे। ये सोच के चेले में गई, मेरे हुसैन बैठे थे, चेला देख के कहने लगी भैया इजाजत हो तो एक बात कहूं? का कौन सी काम? आज नाना की हदीस याद आ गई। बहन कहती है भाई से, और सुन रिश्ते क्या होते हैं। भाई इजाजत है, एक बात कहूं क्या? नाना की हदीस याद आ रही है। ज़ैनब कौन सी हदीस? ये ज़ैनब कोई आम बेटी नहीं, ज़ैनब वो है जिसने आंख खोली तो फातिमा ज़हरा की गोद पाई है, जिसने मुंह खोला तो सबसे पहले मुस्तफा का लुआब पाया है। ये वो है जिसने हलाल कमाई मौला अली की खाई है। अल्लाह अकबर, वो है सैयदा ज़ैनब जिसने 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। कूफे की सबसे पहली मुफस्सिरा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता। ये है सैयदा ज़ैनब। कहती भैया इजाजत हो हदीस बता दो। हाँ बहन बोलो। अल्लाह अकबर, भाई भी मुहद्दिस है, बहन भी मुहद्दिसा है। कसम खुदा की, ये भी कुरान की तफसीर का आलिम और वो भी कुरान की तफसीर की आलिमा। कहती नाना ने कहा था कि सदका मुसीबतों को टाल देता है। अगर इजाजत दे तो बहन सदका करना चाहती है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब जो सदका करना था वो तो मदीने रह गया, ज़ैनब अब क्या सदका करोगी? हज़रत ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, कहने लगी भैया जितना भाई शान वाला है उतना ही सदका शान वाला है। याद रखें बहन भाई के रिश्ते गहरे होते हैं। भाई पैदा ना हो तो भाइयों की पैदाइश की दुआएं पहले मांगा करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो पूरी जिंदगी मां बन के भाइयों को पहले पाला करती है। अगर ये जवान हो तो सेहरे के ख्वाब पहले देखा करती है। भाई दूल्हा बने तो नजरें पहले उतारा करती हैं। अल्लाह को अकबर, सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन जितना भाई शान वाला है उतना ही सदका शान वाला होगा। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा अगर इजाजत दो हुसैन तेरे कदमों पे बेटों को सदका करना चाहती। आज रिश्तों की कदर की हमने। आज बहन रोती हुई आगे धक्का दे के कहते जा यहाँ तो खुद रोटियों के लाले पड़े। और शर्म कर, बहन बेटियों के खाने से कमी नहीं आया करती। ये जितनी बात है दस्तरखान पे आती है सिर्फ अपना नहीं पूरे परिवार का रिस्क लेके आ जाता है। पूरे परिवार का रिस्क लेके आती है। अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है, वो कभी समझना होगा बहन को। तवज्जो है ना अभी आप थके तो नहीं है? जरा कह दे या रसूल अल्लाह सलामत रखे। कभी समझना हो बहन को। ऐसे समझो स्कूल जाते ना बच्चे, देखे ना स्कूल जाते थे बच्चे, स्कूल से वापस आए ड्रेस कहीं, पैंट कहीं, शर्ट कहीं, बस्ता कहीं, टाई कहीं, जूता कहीं, मोजा कहीं। बहन देख रही है लेकिन कभी नहीं कहती है तूने किधर डाल दिया, कौन उठाए? मुस्कुराती रहती है। भाई ने यहाँ बस्ता फेंका, वहां जूता, वहां मोजा, वहां टाई, वहां शर्ट, वहां पैंट। भाई के कपड़े उतारे हुए बहन फौरन इकट्ठा करती है, उनको धुलती है। अगले दिन जब स्कूल जाने का वक्त आता है भाई को बहनें प्यार से उठाती हैं और लहजे कितने प्यारे होते हैं। कभी कहती मेरे जान उठ जा सुबह हो गई है, कभी कहती मेरी जान उठ जा सुबह हो गई है। अल्लाह अकबर, कभी कहती हैं उठ जा मेरे जिगर के टुकड़े स्कूल जाने का वक्त हो गया है। ये रिश्ते होते हैं भाई के बहन के। तैयार करती है बहनें भाई को। जब भाई स्कूल जाने लगता है, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, भाई को जब स्कूल जाने लगता है कपड़े किसने बनाए हैं बहन ने, ड्रेस किसने पहनाई है बहन ने, बस्ता किसने तैयार किया बहन ने, टिफिन किसने तैयार किया बहन ने। जब भाई स्कूल जाने लगता है और जैसी पहला कदम बढ़ाता है अचानक ठोकर लगी, जूते में मिट्टी लगी। उसने कहा बहन मेरा जूता गंदा हो गया है। इतनी बात भाई ने कही है, खुदा की कसम कभी भी देख लेना जब भाई कहते हैं कि जूते पे मिट्टी लग गई है तो बहन कभी गंदा कपड़ा तलाश नहीं करती है, कभी अंदर नहीं गई कि दूसरा कपड़ा तलाश करते रहो, बल्कि
वो दुपट्टा जो बहन की आबरू था, वो दुपट्टा जो बहन की लाज है, वो दुपट्टा जो बहन की शान है, वो दुपट्टा जो खानदान की आन है, उसी का कौन पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। कोई बताती भाई ये तो जूते का मैल है और ये दुपट्टा है, अगर जरूरत पड़ जाए तो बता देना, खुदा ने बहन बनाया है, चांद देकर भी तेरे ऊपर का कीचड़ साफ करके दिखाया। जिनके टमाटो से गरीब बेटियां मरती जा रही हैं, हुक्म बताओ कम से कम मुंह का साइज छोटा करो और हाथ फैलाना बंद करो। किसी के देने से जरूरतें पूरी नहीं होती, जरूरतें तब पूरी होती है जब पैदा करने वाला खुदा दिया करता। वाह मेरी बात, वाह बंद करो टमाटो। नौजवानों की से जन्नत नहीं चाहिए, हर जवान को जन्नत चाहिए, हर नौजवान चाहता है मुझे जन्नत में जाना है। लेकिन मैं कह दूं बुरा ना मानो, हमारे अब्बा ने ना 25 साल इसलिए बेड नहीं खरीदा, बेटा जवान होगा तो जहेज में मिलेगा, इसलिए सोफा नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। हाँ, कुछ लोगों ने जिंदगी साइकिल पे काट दी, खरीदी नहीं मोटरसाइकिल, बेटे को मिलेगी। और कुछ इतने भी नसीब हैं 4 पहिया मांगी और 8 दिन बाद बेच दी, औकात नहीं थी तेल डालने की। ऐसे भी बर्बाद हैं, औकात नहीं। खुदा के वास्ते बंद करो ये डिमांडें, खत्म करो इन रसूमात को, और बेटियों को जीने तो जीने। सबसे ज्यादा आवाज मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले अगर उठाई थी तो बेटियों के हक में उठाई थी। आज कोई बेटियां मारी जा रही है और मर गया ना, गरीब का खून निचोड़ कर पी के अब्बा मर गया। जिसे पूरी जिंदगी बैठ नसीब नहीं होता ना, वो कहता साबुन की लकड़ी का चाहिए। जानवर तुझे तो एक रात भी बैठने नहीं देगा तेरा बेटा। जिसे पूरी जिंदगी गाड़ी में बैठने नहीं मिलेगा, वो कहता बुलेट चाहिए। तू अपनी आखिरत तबाह कर रहा है अपनी। मर जाएगा तो बेटा कहता मेरा अब्बा बड़ा नेक था, कभी दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, हमेशा 10-20 रुपए दे के भेजे। 10-20 रुपए याद है, गरीब का खून निचोड़ कर तेरा बाप लाया, उसे कौन भुलाएगा? मरने के बाद ये चाहते मेरे अब्बा को जन्नती कहते सब, और बेटे मेरे कहने से जन्नती नहीं होगा, तेरे करने से जन्नती हो। ज़हन में बात रखें, हर जवान चाहता मैं जन्नत में जाऊं, जितने चाहते वो हाथ उठा के बता दें। अल्लाह सलामत रखे, सारे चाहते हैं ना। अब वो लोग हाथ नीचे करने जिनकी शादियां हो चुकी हैं, कभी कभी हाथ उठाने का फायदा शादीशुदा भी उठा लेते हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो किसी से डिमांड ना करो कि देखो माशरे में गरीब बेटी किसकी है, चुपके से उस बेटी का सहारा बन जाओ। कसम खुदा की मर के कब्र में आओगे, तेरे चेहरे का कफन बाद में हटाया जाएगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आएगा। करेंगे काम पहले, करेंगे इंशाअल्लाह, अब डिमांड नहीं करेंगे। और तुमसे भी गुजारिश है, हाथ उठा के कहते तब लड़की वाले भी नहीं। लॉकडाउन में डॉक्टरों ने कई तो मरीज मार डाले, 1.5 महीना प्रैक्टिस हुई थी अस्पताल में और लोग वो आ गई कोरोना की बीमारी, तो फिर तो हालात में डॉक्टर बन गए। वो जिसके हाथ में फैला देता लड़की वाला उसके पीछे पीछे दामाद डॉक्टर है, 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दो, 15 लाख के दूंगा रिश्ता करा दो, फिर देख तो ले कितनों की सुइयां उल्टी लगाई है इसने। सालों बीत गए, आज तक दर्द नहीं गया सुइयों का, आज तक लोग टेढ़े सो रहे हैं। और ये 10 लाख लिए घूम रहा है, 10 लाख में दामाद खरीदा, 12 लाख में दामाद खरीदा, 6 महीने नहीं गुजरे, बेटी को बाहर निकाला। जब इसने बेटी को 5 महीने के बाद कान पकड़ के निकाला, फिर आते हजरत के बाद हजरत ताबीज दे दो, दामाद बेटी को नहीं रख रहा है, दामाद ने बेटी को निकाल दिया है। और शर्म कर, तूने देखा क्या था? तूने सुई वाला देखा था, थैले वाला देखा था, तूने चैपाल वाला देखा था, पैसे कमाने वाला देखा था। और जो खुदा से नहीं करता वो ससुर से क्या काम करेगा? अगर दामाद ढूंढना हो थैले वाला ना दे, अगर देखना है तो गुलाम मुफ्ती आजम तलाश किया। खुदा से डरेगा वो तेरी
تمچے والا چاہیے، سمکڑی بندوق والا چاہیے، پہلے تو ڈونڈی کی تمام تیری طرف ہوگی۔ اور خدا کے بندو بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کیا کرو، سوچ سمجھ کے کیا کرو، تو یہ ختم کرو جو ڈیمانڈیں چل رہی ہیں۔ اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پیسے زیادہ دیں گے تو بیٹیاں سکھ میں رہیں گی، نہیں، بیٹیاں سکھ میں رکھنی ہیں تو صرف ایک وظیفے پہ عمل کر لو، دوسرے کی بیٹی کو عزتیں تم دیا کرو، تمہاری بیٹیوں کی عزت کا انتظام پیدا کرنے والا خدا دوسرے کی بیٹی کو عزت تم دو، اللہ تمہاری بیٹی کو عزت عطا فرمائے۔ یہ جو نفرت ہے نکال کے پھینک دو نفرت ہے۔ ہاں، اگر بندہ داماد بن گیا تو یہ سوچتا میں نے تو لڑکی والوں کے ناکام کے لیے، ہاں پھر تو وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا میں داماد جو ٹھہرا، ابے داماد ہے کوئی جن نہیں ہے۔ ہاں کئی سارے سسر کی شکایتیں ہیں، حالات ایسے کہ داماد نے سسرال والوں کا جینا حرام کر دیا، اور جب کھڑوس دیکھ کے لایا تو جینا حرام کرے گا نا۔ قرآن کا قاری دیکھتا، دین کا مبلغ دیکھتا، شریعت کا پاسدار دیکھتا، پھر دیکھ قدم اس کے آتے رحمت خدا کی آنی شروع ہو جاتی۔ ہاں اب تو آن لائن رشتے ہو رہے ہیں، آن لائن رشتے ہو رہے ہیں۔ اور بھائی رشتے یوٹیوب پہ تلاش نہ کیا کرو، رشتے مسجدوں میں تلاش کیا کرو، رشتے جلسوں میں تلاش کیا کرو، رشتے مسجد کی صفوں میں تلاش کیا کرو۔ داماد کو نہ دے جو بلڈنگ والا ہو، داماد وہ دے جو مصطفیٰ والا ہو، ایسا داماد دے۔ ہاں اور دامادو تم توپ نہیں ہو، مر کے دیکھنا بیٹے، کسی کی بیٹی اگر ستائی ہے مولوی کا تیجا نہیں بخشوائے گا تجھے، اگر کسی کا دل دکھا کے گیا ہے تو 40 والی نہیں بخشوائے گا تجھے، اس وقت تک اللہ جنت نہیں دے گا جب تک غریب کی بیٹی کے آنسو دے کے قطرے کی اللہ تجھ سے قیمت وصول نہیں کر لے۔ یاد رکھنا ایک ایک قطرے کی قیمت تجھ سے وصول کی جائے گی۔ آج زندہ ہو تو آج بدل لو، اپنے بدل لو۔ لوگ سمجھتے سود کھانے ہی پر جرم ہے، پیاز کھانا ہی جرم ہے، نہیں، کسی کا دل دکھانا بھی بڑا جرم ہے، کسی کو ستانا بھی بڑا جرم ہے۔ خدا کے واسطے دلوں میں جگہ پیدا کرو، انسان بن جاؤ، انسان دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ اگر کوئی تمہاری محفل میں آ جایا کرے، وہ کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ، اگر تمہاری محفل میں آ کے بیٹھ جائے اسے غیر ہونے کا احساس مت ہونے دینا، غیر ہونے کا احساس مت ہونے دینا۔ پوچھا گیا بتاؤ سب سے بڑا کون ہے؟ کسی نے کہا جو زمانے کو دونوں ہاتھ سے لوٹاتا ہے وہ بڑا ہے، کسی نے کہا جو سب کے جس کے آگے سب گھٹنے ٹیک دے وہ بڑا ہے، لیکن ایک عقل مند نے کہا تھا بڑا وہ نہیں جس کے آگے دنیا گھٹنے ٹیک دے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ ایسے بن جاؤ جو تمہاری محفل میں اپنے آپ کو بھی چھوٹا محسوس نہ کرے، چھوٹا محسوس نہ کرے۔ اللہ کو اپنے ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے محبتیں کرو، دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ آج کون سا ستم ایسا جو امت میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور آج قوم آج بھی گھٹیاں لٹانے میں لگی ہے۔ ہماری بیٹیاں گھر چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے گھر میں جا رہی ہیں، آج بھی ہماری قوم پیسے لٹانے پہ لگی ہے۔ ایسی کوئی بے وقوف قوم نہیں جو تماشوں میں ناچ گانوں پہ 2-2 لاکھ کی گڈیاں اڑا دے۔ اگر تیرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو سن 1 لاکھ کی گڈی لے، تلاش کر پوری بستی میں صحیح بچہ کس کا ہے، غریب ہے، اس بچی کے تعلیم پہ، بچے کی تعلیم پہ پیسہ لگا دے۔ اگر تیرے پیسے سے ایک بھی IAS بن گیا، قسم خدا کی وہ دنیا کے 10 مسلمانوں کے لیے اگر کام آ گیا تو تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ پیسہ صحیح جگہ لگائیے، صحیح جگہ اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کیجیے، ناجائز پیسہ نہ اڑائیے۔ یہ ادارہ، اس ادارے نے آج 40 حافظ قرآن اس قوم کو دیے، عالم حافظ قاری 40 فارغین دیے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو سلامت کرے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تھکے ہیں بھئی آپ حکم ہو رہا ہے 10 منٹ اور بات کر لی ہے، سن لیں گے 10 منٹ؟ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے بزرگوں کو اتنا لمبا انتظار نہ کریں،
ان کی عمر یہ بستر پہ لیٹنے کی تھی، کرم فرمائی ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ ابھی آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا 10 منٹ اور بات کرنا ہے، تیار ہیں پیچھے والے لوگ بھی؟ بھائی ذرا کہتے ہیں رسول اللہ، اتنی کمزور آواز میں تو جناب ہم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، تم تقریر سننا چاہتے ہو، کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھیں، یہ یوں سمجھو شیر بہار کی کرامت ہے جو اتنے بڑے بڑے چہرے آپ کو دیکھنے مل رہے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، آپ میرے بات مبارک حسین مبارک کو سنیں۔ بہت سارے نام ایسے ہیں جو مجھے یاد نہیں لیکن بڑے نام ہیں، سب کو آتا ہے۔ بیٹیوں کا حق ادا کریں گے؟ یہ وہ قوم ہے اگر چیز تو بیٹوں کی پڑھائی پہ 10 لاکھ لگا دیتی ہے، بیٹی کے پڑھائی پہ 10,000 نہیں لگاتی ہے۔ اور پتا کیا کہتی ہے؟ نہیں بیٹی تو پڑھایا تھا نہیں، بیٹے کو بھی اپنی بی ایس بنا دو، یہ سر پہ رہے گا۔ بیٹی کو یہ سوچ کے نہیں پڑھایا جاتا کہ یہ پڑھایا تھا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے بہت غور سے، یہ گھر تھی، باپ کہتا رہا پڑھایا تھا، نکاح کے وقت سسرال پہنچ گئی، ہاتھ سے کب ٹوٹا تو ساس نے کہا پرائے گھر سے آتی ہے۔ جب گھر تھی تو پرایا تھا، سسرال گئی تو پرائے گھر سے آئی۔ ہر باپ مجھے بتائے کہ بیٹی کا گھر کون سا ہے، ہر بھائی مجھے بتائے بہن کا گھر کون سا ہے۔ میکے والوں نے بھی کہا پرائی، سسرال والوں نے بھی کہا پرائی۔ اسے اپنے ہونے کا حق کون دے گا؟ کون ہے اسے اپنا کہنے والا؟ خدا کے بندو، جب یہ گھر میں ہو تو اسے گھر والی کہا کرو، بہن تو اس گھر کی مالک ہے۔ جب سسرال تیرے گھر کسی کی بیٹی آ جائے تو اسے اس گھر کی ملکہ کہہ دیا کرو۔ یہاں بھی گھر دو، وہاں بھی گھر دو، یہ ہمارا حق ہونا چاہیے۔ لیکن بیٹیوں کے ساتھ ستم ہوتا جا رہا ہے۔ قسم خدا کی میں نے بات پہلے کہی تھی، کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے ہیں جو بیٹیاں کر جایا کرتی ہیں۔ آج جائیداد بانٹنے کی باری آتی ہے تو ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی جاتی ہے، بیٹیوں کو ناوارث بنا کے پھینک دیا جاتا ہے، اور بیٹی کے حق کی زمین بیچ کے ابا حج کرنے جا رہا ہے اور اس کے بعد آ کے کہتا ہے جی نام لگاؤ کہ حاجی عبدالصمد آئے ہیں۔ یہ بھی تو بتا بے غیرت کہ بیٹی کا حق کھانے والا عبدالصمد آیا ہے، جہاں تو حاجی کا نام لگا رہا ہے، بیٹی کے حق کھانے کا بھی اعلان کرا کہ میں بیٹی کے حصے کی تصدیقیں بیچ کے حج کرنے آیا ہوں۔ اور شرم کر، اگر تو ایسے 50 حج بھی کر لے اللہ منہ پہ مار دے گا، کہے گا سن بیٹی کا حق کھا کے آیا ہے، ارے حق نہ کھاتا کر رہے کہ 200 گرا دیتا، بیٹی کا حق ادا کر دیتا، میں تجھے بیٹی کے حق میں حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو کم سے کم بیٹی کو ایک کمرہ دے کے چلے جا، جو تیرے مرنے کے بعد وہ گھر آئے تو بیٹے دھکا دیں تو اسے کمرے میں بیٹھنے کا حق ہو۔ ایک کمرہ ضرور دے کے جانا تاکہ تیرے مرنے کے بعد بیٹی اپنا گھر سمجھ کے آ سکے، ورنہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیٹی کو دہلیز پہ چڑھنے تک کی اجازت نہیں دیں گے تیرے بیٹے۔ بڑا ظلم کرتے ہیں وہ باپ جو بیٹیوں کے حق کھا جاتے ہیں۔ قسم خدا کی، بیٹیوں سے جتنا باپ سے جتنا پیار بیٹی کرتی ہے نا، اتنا پیار بیٹا نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ برا لگے یا بھلا، لیکن یقین جانیے قسم خدا کی، اگر باپ بیمار ہو بیٹا پردیس میں، ہاں امریکہ فرانس کہیں بھی ہے کما رہا ہے، فون آتا ہے ابا کی طبیعت خراب ہے، اچھا ابا کی طبیعت خراب ہے، لو میں پیسے لگا دے رہا ہوں، بس یا دعا کرتا ہوں، بات ختم۔ لیکن جب بیٹی کو پتہ چلتا ہے نا میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، اگر گھر جانے کا وقت نہیں ہوتا نا تو پوری رات مصلے پہ گزار دیتی ہے اور رو کے کہتی ہے اللہ میری تو خیر ہے، میرے باپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر اس تعلق سے سارے واقعات اگر میں اٹھا کے لاؤں پوری رات کب پڑ جائے گی۔ مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ ایک بات بیان کر دوں، کبھی کبھی بیٹیاں بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جایا کرتی ہیں۔ اور نوجوانوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا عید کے دن جس نے نئے کپڑے پہن کے 2 رکعت پڑھ لی اس کی عید ہو گئی،
اللہ तौफीक देना। 2 रकात पढ़ के मेलों में न जाया करो, 2 रकात पढ़ के बहन के दरवाजे पे चले जाया करो, 2 रकात पढ़ के बेटी के दरवाजे पे चले जाया करो। तुम्हारी ईद तो नए कपड़े पहन के होती है, लेकिन बहन की ईद बाप का और भाई का चेहरा देख के हुआ करती है। किया करो इनकी ईदों के भी इंतजाम। बेटे कहते हैं अम्मा तूने कपड़े नहीं पहने, चांद दिख गया है। माँ पेटो का चेहरा चूम के कहती बेटे तुम्हारा चांद आसमान पे निकलता है, मेरा चांद तो चौखट से निकला करता है। तुम्हारा चांद नजर आ गया है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया। ये माँ बहनें होती हैं जिन्हें हमने लावारिस बना के फेंक दिया, लावारिस बना के फेंक दिया। एक बहन के शौहर की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती था, उन्होंने फोन किया, भाई ने मोबाइल बंद कर दिया। वो चल के आई भाई के दरवाजे पे, जानते हो 40 बीघे जमीन तो भाइयों को देके गई थी, 40 बीघे जमीन, और ये सोच के आई है कहीं से पैसा नहीं मिला है, जल्दी में भाई के दरवाजे से कुछ मदद हो जाएगी ताकि मेरे शौहर की जिंदगी बच जाए। जब यही बेटी अपने भाई के दरवाजे आई, भाइयों ने धक्का दे के निकाल दी और कहा जा तेरा रखा क्या है, यहाँ लेने के आई है। अल्लाह अकबर, जब बेटियों को ऐसे धक्के दिए जाते हैं तो कोई हले ना गले अल्लाह का अर्श हिलने लग जाएगा। ज़हन में बात रखना, लोग कहते हैं ये तूफान क्यों आ रहे हैं, ये आफतें क्यों आ रही हैं, इसके जिम्मेदार हम ही हैं, हम ही हैं। जब बेटियों के दिल टूटेंगे तो सैलाब नहीं आएंगे तो क्या होगा, जब बेटियां रातों को रोएंगी अगर तूफान नहीं आएंगे तो क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो जब मीरास बांटा करो ना तो बराबर दिया करो, जिसका शरीयत ने जितना हक दिया है उतना दे के जाना, वरना याद रख मर के कब्र में पहुंचेगा, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, शहीद हो, कोई भी हो, अगर बेटी का हक खा के जाएगा अल्लाह करवट लेने तक की कब्र में जगह नहीं देगा। अगर चाहते हो कब्र में आसानी हो जाए, राहत हो, कब्र में ठंडक मिले, बेटियों का हक अदा करके जाओ, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। कभी बाप बेटे को नहीं कर पाते, 4 बेटे अल्लाह ने दिए। कितने कितने 4 बेटे दिए, उसने 4 मीलें थी बड़ी बड़ी, 4 बेटों को दे दी, जायदाद पार्टी बेटों के नाम कर दी, 4 मीलें। एक बेटी थी, उसने शादी कर दी, उसे मीरास से कुछ नहीं दिया, लेकिन सितम वाला है सितम ये कि 10 साल निकाह हो चुके थे, बेटी के दरवाजे पे भी नहीं गया। हमारे समाज में कुछ ऐसे नाक के कुत्ते हैं ना, जिनकी नाक पे घमंड का खंजीर बैठा रहता है, वो अपनी नाक की खातिर बेटियों को नावारिस बना देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, समझी के दरवाजे पे गया तो नाक कट जाएगी। हाँ, शर्म करो, कितने सालों साल बीत गए, बेटियां बाप की चौखट पे न जा सकी, तुम्हारी अना की खातिर, तुम्हारे घमंड की खातिर। ऐसा कभी नहीं करो। 10 साल हो गए, बाप बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, मगर कुदरत को कुछ और ही दिखाना मकसूद था। 10 साल के बाद इसके दर्द उठा, किसके बाप के, जिसने 4 बेटों को बड़ी बड़ी मीलें दी थी और 10 साल से बेटी के दरवाजे पे नहीं गया। बेटे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा क्या बात है, डॉक्टर कहने लगा इसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, अगर इसे जिंदा रहना है तो गुर्दे देने पड़ेंगे। उसको बड़ा फख्र था बेटों पे, उसने कहा पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी, बड़ी बड़ी 4 मीलें बेटों के नाम कर दी। उसने बड़े बेटे को बुलाया, कहने लगा बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी दुनिया में कुछ दिन और जीना चाहता हूँ, मुझे गुर्दे की जरूरत है। बेटे ने कितना सोना कहने लगा, तुम्हारी जिंदगी तो गुजर गई है, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो, हम तुम्हें गुर्दा देकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ये कह के बेटे ने जब जवाब दिया, अल्लाह अकबर, बाप ने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसने भी ये जवाब दिया, तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसने भी यही जवाब दिया। चारों बेटों ने बारी बारी इनकार कर दिया। जब चारों बेटों ने इनकार कर दिया, आज बाप को पता चला उसने कितनी बड़ी गलती की है। अल्लाह अकबर रोने लगा, डॉक्टर से कहा यार ले चल, अंदर ले चल, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, वरना मौत तो मुकद्दर है ही। ये कह के हॉस्पिटल में चला गया, बेटों से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया। जैसे ये बात रिश्तेदारों को पता चली है कि उनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, सेठ को बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, ये खबर चलते चलते बेटी के कानों तक पहुंच जाती है। 140 किलोमीटर के फासले पर रहने वाली बेटी, जब उसको पता चला है बाप हॉस्पिटल में है, गुर्दे की जरूरत है, भाइयों ने
गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। उसकी गोद में 6 माह का बच्चा था, सीने से लगाया, 140 किलोमीटर का सफर किया, हॉस्पिटल में आ गई, आके कहने लगी डॉक्टर फरहान नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। उसने कहा हाँ, का जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल उसके डाल दे। अल्लाह बहुत बड़ी तरह सुना है। वो डॉक्टर कहता है बेटी पहले बता तो सही तू कौन है। उसने कहा ये ना पूछ मैं कौन हूँ कहीं ताखीर ना हो जाए, अगर देर हो गई तो मरीज की जान चली जाएगी, जल्दी कर सब बता दूंगी मेरा गुर्दा निकाल। सबसे पहले मरीज के गुर्दा डाल, ऑपरेशन किया गया, बेटी का गुर्दा निकाल के बाप को डाला गया। जब बच्ची ठीक होके जाने लगी डॉक्टर कहने लगा बेटी वापस जा रही है, अगर ये पूछेगा मुझसे कि ये गुर्दा कौन दे के गया है तो कम से कम नाम तो बता के जा, बता तो बता के जा। बच्ची ने नाम पता कुछ ना बताया। उसने कहा नहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही, अगर जिद करेगा तो क्या कहूंगी। उसने कहा डॉक्टर जरा कलम कागज दे दे। डॉक्टर ने कलम कागज लिया है, बच्ची ने खत लिखा है, लिखने के बाद डॉक्टर के हवाले किया। सुन अगर मरीज निकल के मेरे बारे में पूछने लगे जिद करे तो कुछ ना बताना, बस ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह पर बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब ये हॉस्पिटल से बाप निकला है, बेटे भी आ गए, इसलिए कि अभी इसके नाम में दौलत काफी थी। बेटों को पता चला बाप भी हो चुका है तो दरवाजे पे आए बाप को रिसीव करने के लिए। बाप ने कहा नहीं मुझे किसी बेटे से नहीं मिलना है, मुझे लेके चलना है तो डॉक्टर के पास लेके चलो। किस लिए? कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है, उसने मेरी जिंदगी बचाई है। ये सुना है तो लेकर के रिश्तेदार मरीज को डॉक्टर के पास आए, उसने हाथ जोड़े, कहने लगा डॉक्टर तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था लेकिन तूने जिंदगी बचा ली, पता कैसे जिंदगी बचाई है। डॉक्टर कहता है शुक्रिया मेरा अदा न कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। इतना सुनना था। अब बाप परेशान हो गया, का नाम क्या था बच्ची का नाम तो नहीं बताया, कब पता तो बताया होगा, कब पता भी नहीं बताया, कहाँ तलाश करूं। कहता मुझे याद है वो एक खत दे करके गई है। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, निकाल करके जैसे कि इसके हाथ में दिया है, इसने पहली लाइन पढ़ी है, जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार कर रोने लगता है। डॉक्टर कहता यार बता तो सही तेरे इलाज में कोई कमी नहीं है, शिफायाब होके निकला है, क्यों रोया, क्यों जमीन पे बैठ गया। उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है ये खत किसी और का नहीं बल्कि मेरी सगी बेटी का खत है। जैसे ही तेरी बात सुनी है डॉक्टर कहता है यार इसमें रोने की क्या बात है। रोने की बात ये है डॉक्टर अगर खत सुनेगा तू भी रो देगा। लिखा क्या है अल्लाह अकबर, अब सुन बेटी क्या होती है। सबसे ऊपर लिखा था एक मजबूर बेटी का सलाम, बाप की बात में कबूल हो। ए मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूँ, जैसे मुझे पता चला है कि भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, ए मेरे बाप मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा देने चली आई हूँ। लेकिन ए मेरे बाप मैं जो तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ ये एहसान नहीं कर रही हूँ, तूने 18 साल सीधे से लगा के पाला था। ए मेरे बाप तेरा एहसान काफी था, तूने 18 साल तक कमाई के लुकमे खिलाए थे, तेरी बेटी पे वो एहसान काफी था, गुर्दा देकर के एहसान नहीं कर रही हूँ। अगर 18 साल की परवरिश के बदले में तू जान भी मांगेगा, हंसते हंसते जान भी दे दूंगी, लेकिन शिकवा नहीं करूंगी। वो कहती पापा ये मैं गुर्दा दे के जा रही हूँ, इसके बदले में मैं तुझसे कुछ मांगना नहीं चाहती। ए मेरे बाप तूने मुझे जायदाद रखी तो कोई बात नहीं, नीलों का बारिश नहीं बनाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूँ, बस इतना बता दे। 10 साल बीत गए हैं, ये बता मेरा कसूर क्या है। 10 साल हो गए तो मेरे दरवाजे पे नहीं आया, बता मेरी खता क्या है। ए मेरे बाप तू क्या जाने कितनी ईदें आई हैं और मैंने हर ईद पे तेरा रास्ता तका है, चाहे इस ईद को मेरा बाप आना होगा। ए मेरे बाप 10 साल बीत गए, कितनी ईदें आकर के चली गई है लेकिन तू नहीं आया है। ए मेरे बाप दुनिया की बेटियां अपने बाप को देख करके नए कपड़े पहना करती है, लेकिन 10 साल हो गए हैं तेरी बेटी ने किसी ईद पे नया कपड़ा नहीं पहना है। ए मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ, मैं तुझसे शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, मुझे ये भी शिकायत नहीं है कि तू 10 साल से मेरे घर नहीं आया। लेकिन मेरे बाप अगर तुझको मेरा ये काम पसंद आ जाए तो इतनी मेहरबानी कर देना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा जरूर दे देगा। अल्लाह पर नीचे लिखा था ए मेरे बाप अगर तेरे बगैर मेरा जनाजा उठा लोग कहेंगे बदनसीब का जनाजा है, कम से कम कांधा लगा देना ताकि दुनिया देख के कह दे कि बदनसीब का जनाजा नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा। जिंदाबाद
जिस दिन से हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, कसम खुदा की उसी दिन से बेटियों की इज्जत में 8 चांद लग गए। उसी दिन से 8 चांद लग गए। और घर जाके बेटियों को भी एक पैगाम दे, तुम्हें जो इज्जतें मिली है हुजूर के कदमों की बरकत से मिली है। कभी सर से दुपट्टा सरकने लगे तो हुजूर की कुर्बानियां याद कर ले। कभी मेरे मज़ार पर घूमने का मन करे तो हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। कभी बेहयाई को उतरने का दिल करे तो हुजूर के तारीफ के पत्थर याद कर लेना। खुदा की कसम तुम्हें कोई पूछने वाला ना था, आज तो जन्नत की जमानत बनी हो, अपने बलबूते पे नहीं मुस्तफा जान रहमत की फरमान की बलबूते। बेटियों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते अगर किसी का सोना तुम्हें लटकाए, किसी की गाड़ी तुम्हारे गलत कदम उठने पे मजबूर करे, एक बार अपने बाप की टूटी हुई जूती देख लेना, उसके फटे हुए पैबंद लगे कपड़े देख लेना। जिसने 18 साल पैबंद लगे खुद तो कपड़े पहने लेकिन कभी बेटी के सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। जिसने अपने पैर में जूती सिलवा के पहनी लेकिन कभी बेटी को नंगे पैर न चलने दिया। आज कदम गलत उठने लगे तो उस बाप की कुर्बानियां याद करना बेटियों। कसम खुदा की ये लव मैरिज के दावे करने वाले तुम्हें क्या दे सकते हैं। बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। इन 2 दिन के झूठे दावे करने वालों के धोखे में मत आना मेरी बेटी। जब ये तुझे तलाक दे देता है, दुनिया समान ठुकरा देता है, लेकिन कभी बाप तुझे नहीं ठुकराया करता। जब दुनिया तुझे समाज का मैल समझ के ठोकर मार देती है, तब बाप तुझे कलेजे की ठंडक समझ के दिल और घर दोनों में बाप ज्यादा दिया। इसलिए बेटियों की जिम्मेदारी है, बाप के दिल का भी ख्याल रखें, समाज की इज्जत का भी ख्याल रखें। माशरे में कोई गलत कदम बेटी तेरा ना उठने पाए। हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश की जाए, दिल में एक दूसरे की जगह बनाई जाए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत कायम की जाए, प्यार बांटो यार प्यार। कसम खुदा की करोड़ों रुपए का मालिक तुम्हें इतना सुख नहीं देता जितना दूसरे का दिल जोड़ देना सुकून देता। किसी के दुख का सबब न बनना, अगर बन सको तो सुख का सबब बन जाना। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जीने का सलीका अगर सीखना है, कसम खुदा की माँ की गोद से लेकर कब्र तक कोई गोशा ऐसा नहीं जिस पर मुस्तफा ने अपने किरदार से रोशनी न डाली हो। जिंदगी के किसी मोड़ पर फंस जाओ, मत जाना किसी तावीज़ वाले के पास, मत जाना किसी गंडे वाले के पास, सिर्फ जाना मौलवी के पास, कहना हुजूर की जिंदगी के इस पहलू का बाप पढ़ के सुना दे जो मुस्तफा ने जिंदगी के उस मोड़ पर किया हो, वो कर लेना। 10,000 तावीज़ वो नहीं दे सकते जो हुजूर के किरदार की 2 लाइनें तुम्हें दे सकते। हुजूर की सीरत अपने घरों में हुजूर की मोहब्बत के रंग लाओ। बेटियों को कनीज़ फातिमा बनाओ, बेटों को गुलाम हुसैन बनाओ। बेटों ये अहद कर लो किसी की दौलत से अमीर नहीं बनेंगे, अगर अमीर बनेंगे तो मदीने वाले के करम से अमीर बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।